السلام علیکم ناظرین، روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے جلدی جس چیز کا ثواب پہنچتا ہے وہ نیکی کرنا اور رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جن کا عذاب آتا ہے وہ بغاوت اور رشتہ داری توڑنا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ بی جے پی قائدین عوام کے درمیان مگرمچھ کے آنسو بہانا چھوڑ کر اگر دم ہے تو تلنگانہ میں ہو رہی تباہی جو ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہے، اس کے لیے مرکز کی جانب سے 25,000 کروڑ کا فنڈ لائے۔ بودھا رکن اسمبلی شکیل عامر، انہوں نے بارش متاثرہ علاقوں کا کیا دورہ۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے شہر نظام آباد کے بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے حالات کا لیا جائزہ۔ وہ بابن صاحب پہاڑی علاقے میں درپیش مسائل سے عوام کے ذریعے حاصل کی واقفیت۔ وہ عہدیداروں کو عوام کی حفاظت کے لیے ہر ممکنہ اقدامات لینے کی دی ہدایت۔ نظام آباد رکن اسمبلی بی گالا گنیش گپتا کی جانب سے 2000 بارش متاثرین میں کھانے کی تقسیم کا آغاز۔ وہ بارش کے موجودہ حالات کا وقت بوقت عہدیداروں سے حالات کا لیا جائزہ۔ قائدین و عہدیداروں کو عوام کی مدد کرنے کا دیا مشورہ۔ امریکہ دورہ صرف ضلع کے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا ہے۔ اربن رکن اسمبلی بی گالا گنیش گپتا۔ بانسواڑہ میں محکمہ پولیس نے بین ضلعی خواتین چوروں کے گروپ کو کیا گرفتار۔ وہ کئی اشیاء کی ضبط۔ جگتیال میں ٹی وی رپورٹر کار سمیت بہہ جانے کے واقعے پر ابھی تک بھی حکومت کی جانب سے کوئی ٹھوس اقدامات نہ لینے پر شہر نظام آباد کے صحافیوں نے کیا افسوس کا اظہار۔ وہ پریس اکیڈمی میں حکومت سے کارروائی کرنے کا کیا مطالبہ۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یہ بارش نیشنل ڈیزاسٹر ہے، اس کے لیے مرکزی حکومت 25,000 کروڑ روپے کا بجٹ منظور کرے۔ رکن پارلیمنٹ ایم پی ارون کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مشکل وقت میں وہ آرام سے گھر نہ بیٹھے بلکہ عوام کے درمیان کام کریں اور انہیں ورگلانا بند کریں۔ بودھا رکن اسمبلی شکیل عامر، انہوں نے مختلف منڈلز کا دورہ کرتے ہوئے لیا جائزہ۔ بودھا نرخ اسمبلی میں مسلسل 5 روز سے مسلادھار بارش سے انسانی زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی۔ اس کے علاوہ رینجل منڈل و دیگر مقامات پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی۔ رکن اسمبلی شکیل عامر نے بودھا نرخ اسمبلی کی مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ہمراہ اور حلقہ اسمبلی کے مختلف مقامات کا دورہ کرتے ہوئے بارش کے متاثرین کے لیے راحت کاری اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت جاری کی کہ بارش سے شدید طور پر متاثر ہونے والے علاقوں میں جنگی خطوط پر راحت کاری اقدامات کیے جائیں۔ متاثر میں غذائی اشیاء فراہم کرنے کے علاوہ انہیں دوسرے محفوظ مقامات پر منتقل کرتے ہوئے راحت پہنچائی جائے۔ بودھن منڈل کے انگرگاہ موضع میں پانی کی مقدار زیادہ بڑھنے کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر نے وہاں کے سرپنچ ایم پی ٹی سی کو ہدایت دی کہ وہ اس موضوع کی عوام کو فوری دوسری جگہ منتقل کرنے کی ہدایت دی۔ شکیل عامر نے اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں جاری مسلسل بارش کے باعث کئی پروجیکٹس زیر آب آ چکے ہیں، جس سے بودھن کی سالورا چیک پوسٹ بانچرا ندی کے راستے کو بند کر دیا گیا۔ ریاست تلنگانہ سے مہاراشٹر ملنے والی سرحدوں کو بند کر دیا گیا کیونکہ اس پل پر شگاف کی وجہ سے وہاں سے گزرنا خطرہ مول لینا ہے۔ شکیل عامر نے عوام سے خواہش کی کہ وہ موسم برسات میں گھر سے باہر نہ نکلے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے گھروں میں رہے۔ کسی چیز کی ضرورت پڑنے پر ہی وہ باہر نکلے۔ عوام سے خواہش کی کہ وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ پولیس، ریونیو، میونسپل آبپاشی، پنچایت راج، ٹرانسکو و دیگر محکمے کے عہدیداران متحرک ہیں۔ اس موقع پر آر ڈی او راجیشور، اے سی پی راما راؤ، ٹی آر ایس قائدین محمد عبدالرزاق کے علاوہ دیگر ٹی آر ایس قائدین موجود تھے۔ రోజు నుంచి భారీ వర్షాలతోని వేలాది కోట్ల రూపాయలు డ్యామేజెస్ అయినాయి। ఇది ఒక డిజాస్టర్ ఫ్లడ్ రిలీఫ్ కాబట్టి నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కింద వస్తుంది। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న
భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీలు ఇమీడియట్గా ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గర పోయి తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతులకు న్యాయం చేసే విధంగా, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి న్యాయం చేసే విధంగా ఇమీడియట్గా 25,000 కోట్ల రూపాయలు ఫ్లడ్ రిలీఫ్ ప్యాకేజ్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇమీడియట్గా తీసుకు रियासती वजीर विमला परेशान रेड्डी का शहर निजामाबाद के अगलती इलाकों व बारिश से मुतासर इलाकों का किया अचानक दौरा। अवाम की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम लेने की ओहदेदारों को दी हिदायत। रियासती सड़कों, इमारतों, हाउसिंग और कानून साज के उमूर की वजीर विमला परेशान रेड्डी ने जुमेरात को निजामाबाद शहर के नशीबी इलाकों और बहाली मराकज़ का दौरा किया, जो गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से पानी में डूब गए हैं। जिले परिषद के चेयरमैन विट्ठल राव, सिटी मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी और दीगर ने मैदानी सतह पर बाबन साहब पहाड़ी, बोधन रोड पर फ्रूट मंडी, बाईपास रोड, गंगास्तान और दीगर इलाकों में सूरत हाल का मुआयना किया। इसके अलावा वजीर ने बोधन रोड के रेउन फंक्शन हॉल और गोपनपल्ली के एम्ब्रियल गार्डन में जारी बहाली मराकज़ का मुआयना किया, जहां सैलाब मुतासरीन को रिहाइश दी गई थी। सैलाब मुतासरीन से खिताब करते हुए वजीर विमला ने इन्हें फ्राहम की गई रिहाइश और सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। वजीर ने सैलाब मुतासरीन को बताया कि वो खुराक और कंबल फ्राहम करें और इन्हें मशवरा दिया कि अगर इन्हें कोई परेशानी हो तो काम से रब्ता करें। ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो बहाली मराकज़ में लगाए गए मेडिकल कैंपों को मज़ीद कुछ दिन जारी रखें। इन्होंने वाज़ेह किया कि सैलाबज़दा इलाकों में मौसमी अमराज के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। खुराक और रिहाइश की सहूलियात के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं और हुकूमत 10,000 अफराद को भी पनाह देने के लिए तैयार है। वज़ीर विमला परेशान रेड्डी ने कहा कि जिन्होंने गंगास्तान में फुलांग और बाबन साहब पहाड़ी में नहरों में पानी के बहाव का मुआयना किया, काम को नहरों के करीब रहने वाले तकरीबन 100 कुंभों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया। दरगाह बाबन साहब पहाड़ी के मुकामी लोगों ने वजीर मौसूफ की तवज्जो दिलाई कि बाबन साहब पहाड़ी के रास्ते पर तंग पुल की वजह से ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना है। वजीर ने इस मसले को जल्द अज जल्द हल करने का वादा किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि गुज़िश्ता 5 या 6 दिनों से मुसलसल हो रही बारिश के बावजूद ज़िले में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। इन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उठाए गए मौसर पेशगी इक़दामात की वजह से चंद छटपट वाक़यात के अलावा कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि हुकूमती मशीनरी मुस्तक़बिल में भी शदीद बारिशों की सूरत में किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। लोगों से मुनासिब एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने को भी कहा गया। वज़ीर विमला परेशान रेड्डी ने कहा कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले जब तक कि ये हंगामी सूरत हाल न हो और अपने सफ़र को मनसूख कर दे। कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कहा कि मुतालिका महकमों के ओहदेदारों को चौकन्ना कर दिया गया है और वो जानी नुकसान को रोकने के लिए हालात की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं और ज़िले में मूसलाधार बारिश की वजह से अमलाक इन्होंने कहा कि लेकिन चूँकि तमाम तालाब भरे हुए हैं और बहुत सी जगहों पर सैलाबी पानी की एक बड़ी मकदार सड़कों से बह रही है, लोगों से अपील की गई कि वो ऐसे हालात में सैलाबज़दा सड़कों पर सफ़र ना करें। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि खदी मकानात में रहने वाले फौरी तौर पर बहाली मराकज़ में पनाह लें और बिजली के तारों और खंभों से दूर रहें। वज़ीर के हमरा एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर, इंचार्ज कमिश्नर चित्रा मिश्रा, निज़ामाबाद RDO रवि, तहसीलदार सुदर्शन, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुतालिका डिवीज़नों के कॉर्पोरेटर्स मौजूद थे। విపరీతంగా వర్షాలు పడుతున్న సందర్భంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారం నిన్న నిజామాబాద్ జిల్లాకు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. అక్కడ SRSPలో ఆ ప్రాజెక్టు యొక్క మానిటరింగ్ చేసుకొని ఇక్కడ నిజామాబాద్ జిల్లాకు వచ్చి హెడ్ క్వార్టర్స్కి వచ్చి నేను ఇక్కడే ఉండి అధికారులతో సమీక్ష చేయడం జరిగింది. మా అధికారులు కలెక్టర్ గారు, సిపి గారు, వారి బృందం మొత్తం కూడా అప్రమత్తంగా ఉండి ఇప్పటి మటుకు చెప్పుకోదగ్గ పెద్ద అవాంఛనీయ సంఘటనలు ఏం జరగలేదు, మొత్తం కంట్రోల్లోనే ఉన్నది. అట్లాగే నిజామాబాద్ టౌన్లో మోర్ పర్టికులర్గా నిజామాబాద్ టౌన్లో లోతట్టు ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడి నుంచి ప్రజల్ని తీసుకొచ్చి 4 షెల్టర్ హోమ్స్ ఏర్పాటు చేశారు మా కమిషనర్ గారు, చిత్రా మిశ్రా గారు, అట్లాగే మా మేయర్ గారు. 4 ఈ సెంటర్స్లలో వాళ్ళకు భోజనాలు పెట్టి ఉంచుతున్నారు. అక్కడ నీళ్లు ఆ బస్తీల నుంచి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత అప్పటిదాకా కూడా ఇక్కడే ఉంచాలని చెప్పి మరి కమిషనర్ గారికి సూచించడం. अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने वीडियो कॉल के जरिए शहर में दरपेश मसाइल से हासिल की वाकिफियत व ओहदेदारों को दी मुख्तलिफ हिदायतें।
निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने आज शहर निजामाबाद एडिशनल कलेक्टर व इंचार्ज बल्दी कमिश्नर से बजरिए वीडियो कॉल बात करते हुए शहर के मौजूदा हालात से वाकिफियत हासिल करते हुए मुख्तलिफ हिदायत जारी की और ज़रूरत पड़ने पर इनके ज़ाती खर्च से कोरोना दौर की तरह ग़ज़ा की फ़राहमी करने का भी इजहार किया, जिस पर बल्दी कमिश्नर ने कहा कि अभी तक हालात काबू में हैं और नशीबी इलाकों से अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और इनके लिए हुकूमत की जानिब से ग़ज़ा की फ़राहमी भी अमल में लाई जा रही है। इन्होंने महकमे बरक़ी व दीगर महकमों के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो हर वक्त अवाम के दरमियान रहते हुए काम करें। See, actually, my program, as per my schedule, I had to stay for a few more days. But since it's heavily raining, so I just preponed my program, and I'm starting today. Okay, please. Yeah. Already, I told my mayor garu, corporators, and all my leaders if anything necessary, if anybody needs food. Okay, can I talk to you in Telugu? बारिश से मुतासर इलाकों में रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से ग़िज़ाई अशिया की तक़सीम का आगाज़, अव्वाम में खुशी की लहर। हरदिल अजीज़ अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से बारिश से मुतासर इलाकों में फलाही कामों का आगाज़ अमल में लाया गया और शहर के मुख्तलिफ इलाकों के बारिश से मुतासरीन में खाने की अशिया की तकसीमी के अमल को शुरू किया गया। इन कामों को मियां नीतू किरण, नूडा डायरेक्टर प्रभाकर रेड्डी व दीगर कॉरपोरेटर्स ने पहुंचकर मुशाहिदा करते हुए जिम्मेदारी लेते हुए अपने अपने इलाकों में तकसीम के अमल को आगाज किया। इस मौके पर इन्होंने इनकी जानिब से किए जाने वाले कामों को सताइश की और इनके इस दौरे से वापस आने पर शहर के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलने के मौक़ों में इजाफा होने का इजहार किया। इस मौके पर टीआरएस कायद अवैज़ अहमद, राजू, मुरली, मौलाना सिद्दीक व दीगर मौजूद थे। जगत्याल में टीवी रिपोर्टर कार समेत बह जाने पर भी हुकूमत व सहाफती बिरादान की जानिब से किसी तरह का रद्द अमल तक जाहिर न करने पर निजामाबाद के बाशऊर सहाफ़ियों की जानिब से सहाफती नशिस्त का एहतमाम करते हुए हुकूमत से किया मुतालबा। रियासत तेलंगाना में मौसलाधार बारिश की वजह से जो सूरत हाल बनी हुई है, न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि मुल्क की सतह पर बारिश की वजह से बदतरीन सूरत हाल पैदा हो गई है। आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। मजदूर पेशा अफराद, सनती मजदूर, कई अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं। कई तालीमी इदारे, कई सनतें मुल्क में बंद हो चुकी है। हंगामी सूरत हाल चल रही है। रियासत तेलंगाना में मुख्तलिफ अजला में सैलाब की जैसी कैफियत हो चुकी है। बहैसियत जर्नलिस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस हंगामी सूरत हाल में रिपोर्टिंग करते हुए जगत्याल ज़िले के NTV के एक सहाफ़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका नाम है ज़मीरुद्दीन है, नौजवान साथी है। वो एक इलाक़े में रिपोर्टिंग करने पहुँचे थे। वापसी के दौरान उनके साथ मज़ीद 2 साथी भी थे। एक रास्ते से गुज़र रहे थे जहाँ पर पानी का फ़्लो ज़्यादा था। उस फ़्लो में उनकी कार बह गई है और इस हादसे में अवाम की रियासती अवाम की तर्जुमानी के लिए, हुकूमत को आईना दिखाने के लिए सहाफ़ियों की खिदमत लायक़ सताइश है। मैं उनकी खिदमत को भरपूर खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और मैं अल्लाह से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला अता फ़रमाए। और मैं तमाम सहाफ़ियों से भी अपील करता हूँ कि सबसे पहले वो रिपोर्टिंग करते वक्त अपनी सिक्योरिटी को देखें, एहतियाती तदाबीर को अपनाएं और हुकूमत के ताउन के ज़रिए सिक्योरिटी के साथ वो एहतियाती इक़दाम के तहत रिपोर्टिंग करें। मैं तमाम सहाफ़ियों से ये अपील करता हूँ और मैं रियासती हुकूमत बिलखुसूस मीडिया अकेडमी के चेयरमैन जनाब अलम नारायण साहब से पुरखुलूस अपील करता हूँ कि इस सहाफ़ी को हुकूमत की जानिब से 10 लाख की इमदाद और उनके एक फ़र्द को हुकूमती सरकारी सतह पर एक रोज़गार के साथ साथ उन्हें मकान की सहूलत इनायत फरमाए, उन्हें मकान अलाट करे। हमारी जानिब से सहाफ़ती खिदमत को सराहते हुए हुकूमत को चाहिए कि सहाफ़ियों के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। माजी में ये होता था कि और तूफ़ानी सूरत हाल से हमारी रियासत के और करीबी ज़िले के सहाफ़ी मोहम्मद ज़मीरुद्दीन जो NTV इदारे के लिए अपनी खिदमत अंजाम देते थे, वो गुज़िश्ता दिनों न्यूज़ कवरेज के दौरान
رائکل کے ایک مقام پر جب وہ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے، پانی کے تیز بہاؤ کے ساتھ وہ بے قابو ہو کر کسی دوسری جگہ پر ان کی گاڑی پہنچ گئی۔ بہرحال ان کا نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ تمام صحافیوں کے لیے یہ ایک غمگین لمحہ ہے، اور ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ صحافی اپنی زندگی کو داؤ پر لگاتے ہوئے لوگوں کو اپنی جانب سے خدمت فراہم کرتا ہے، لیکن اس کی خدمات کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ محمد ضمیر الدین جو NTV کے لیے کام کرتے تھے، ان کی خدمات کو ہرگز فراموش نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ ریاستی سطح پر اور ملکی سطح پر انہوں نے خدمت کے جس جذبے کو پیش کیا ہے، اس جذبے کی ستائش کی جانی چاہیے اور ان کی خدمات کی سراہنا کی جانی چاہیے۔ اہم بات تو یہ ہے کہ ریاست تلنگانہ میں جب سے حکومت تلنگانہ اور اس موقع سے ریاست میں وزارت اطلاعات و نشریات کا شعبہ ہمارے حد العزیز وزیر اعلیٰ کے ہاتھ ہے، تو ہم ان سے بھی پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس غمزدہ فیملی کے لیے بھرپور امداد کا اعلان کرے، اور جو صحافی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے لیے مختلف سہولتوں کو فراہم کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھائی جائے، بلکہ علم نارائنا صاحب جو پریس اکیڈمی کے چیئرمین ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ صحافیوں سے مشاورت کرتے ہوئے جو سہولتیں فراہم کی جانی چاہیے ان کو ایک جانب اکٹھا کرتے ہوئے ریاستی وزیر اعلیٰ کے سپرد کرے، تاکہ صحافی ہے ہمارے پڑوسی ضلع کے چکیال کے NTV رپورٹر ضمیر صاحب کی حکومت کی جانب سے ابھی تک بھی کسی طرح کا رد عمل کا اظہار نہ کرنا کافی بے حسی کی بات ہے، اور ان کے افراد خاندان کو سرکاری نوکری، وہ انہیں مالی امداد اور مستحکم انداز سے ان کے افراد خاندان کو مدد کرنے کی ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ NTV ادارے سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں پہل کرے، اور اسی طرح ہمارے نظام آباد کے صحافیوں کی جانب سے ہم تمام صحافیوں کو یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے حالات کو مستقبل میں بھی جب بھی پیدا ہو، اس طرح حکومت تیار رہے اور حکومت اس طرح کی اسکیم لانچ کرے جس کے ذریعے صحافیوں کو پروٹیکشن فراہم کی جا سکے۔ اور رینجل منڈل میں بارش متاثرین میں جمعیت علماء و خدمت خلق کی جانب سے مالی امداد کی گئی تقسیم۔ مسلسل ہو رہی بارش کے مد نظر آج رینجل منڈل کے کندہ کرتی موضع میں جمعیت علماء و خدمت خلق تنظیم کی جانب سے دورہ کرتے ہوئے ایسے افراد جن کے گھروں کو بارش کے سبب نقصان پہنچا ہے، ایسے متاثرین کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں مالی امداد فراہم کی گئی۔ اس موقع پر صدر تنظیم مرزا افسر بیگ نے نوجوانوں کے اس ملی جذبے کی ستائش کی اور نوجوانوں کو اس طرح کے فلاحی کاموں میں آگے آنے کی اپیل کی۔ عالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آج خدمت خلق اور جمعیت العلماء کی طرف سے رقمی امداد دی گئی ہے۔ 10 سے 15 گھروں میں رقمی امداد کی شکل میں جو لوگ بہت ہی زیادہ پسماندہ علاقے میں اور بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں ہیں، ان کے لیے امداد دی گئی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی محنت کو قبول فرمائیں، اور اسی جذبے کے ساتھ ملی خدمت کو جاری رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت والی بارش برسائے، عذاب والی بارش سے ہم سب کی، ہمارے علاقے کی، ہمارے تلنگانہ کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔ جماعت اسلامی ہند بھینسا شعبہ خدمت خلق کی جانب سے مستحسن اقدام، مستحق عوام تک بر وقت امداد پہنچانا شعبے کا اولین مقصد۔ جماعت اسلامی ہند بھینسا شعبہ خدمت خلق کی جانب سے شہر میں بارش سے متاثرہ زدہ علاقے جن میں پرانا بازار، کھاری گلی، بنگلہ گلی، اویسی نگر کے اقصا مسجد علاقے، فاطمہ مسجد کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مستحقین و یومیہ مزدوری کرنے والے افراد کی
करते हुए घर घर पहुंचकर फीकस 500 रुपये तकरीबन 50 ज़रूरतमंदों में नगद रकमी इमदाद पहुंचाई गई। इस वफद में इलियास अहमद राहिल, अमीर मुकामी बैंसर जमात इस्लामी, मुबीन अहमद फिरदौसी, नाजिम शोबा खिदमत खल्क मुजीब अहमद, नाजिम कारकुनान हाफिज खान, सैयद सरफराज, मोहम्मद मोइन, मोहम्मद शफी, अजीज खान, मोहम्मद समी के अलावा दीगर कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर इलियास अहमद राहिल ने कहा कि मुसलसल बारिश की वजह से शहर में तबाही मची हुई है, बिलखुसूस वो खानदान जो यौमिया मजदूरी करते हुए अपनी जिंदगी बसर करते, वो काफ़ी परेशान हाल है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज जमात इस्लामी हिंद ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे करते हुए ज़रूरतमंदों में बेवाओं में इलाज और मुआलजे के लिए इमदादी रकम पहुँचाई गई। मजीद शहर में रिलीफ के कामों का होना नागुज़र है, क्योंकि बारिश की वजह से कारोबार बंद होने की वजह से आम कारोबारी परेशान हाल है और बदहाली की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इसी ज़िमन में जमात इस्लामी शोबा खिदमत खल्क की जानिब से मुफ्त राशन पैकेज तैयार किए जा रहे हैं। फी पैकेज की कीमत 250 है। इसके अलावा मुस्तहिक़ीन में 500 की इमदादी रकम तकसीम की जा रही है। अहले खैरात से अपील की जाती है कि अगर वो इस कार खैर का हिस्सा बनना चाहते हो तो मुकामी जमात के ज़िम्मेदारान से रब्ता कायम करते हुए भी ताउन कर सकते हैं। MLC के कविता ने बारिश के पेश नज़र अवाम से अपील की कि अवाम जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकले और चौकस रहने का मशवरा दिया। मुत्तहदा MLC कविता ने सहाफ़ती बयान जारी करते हुए कहा कि CM KCR रियासत भर में मूसलाधार बारिश और सैलाब का मुसलसल जायजा ले रहे हैं और एक ख़ानदान के सरबराह की तरह खड़े होकर अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों को वक्तन फ़ौक्तन मुनासिब अहकामात दे रहे हैं ताकि अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सैलाबी इलाकों में तिब्बी, बिजली और पीने के पानी की सहूलियात में कोई खलल ना पड़े। TRS पार्टी के कायदीन भी सैलाब रिलीफ प्रोग्रामों में जगह जगह हिस्सा ले रहे हैं, खाना तकसीम करके लोगों को हौसला दे रहे हैं। लोगों से चौकस रहने की अपील करें और जब तक ज़रूरी ना हो बाहर ना निकले। MLC के कविता ने अवाम से अपील की। तेलंगाना रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बारिश के मद्देनजर ओहदेदारों को दी मुख्तलिफ हिदायतें। गुज़िश्ता चंद रोज़ से होने वाली मूसलाधार बारिशों के बारे में गुज़िश्ता रोज़ और दूसरे रोज़ होने वाले हल्के के इजलासों में बहस की गई। मौजूदा मूसलाधार बारिश के अलावा महकमे मौसमियात ने खबरदार किया कि मज़ीद चंद रोज़ तक शदीद बारिशें होंगी। सरकारी स्कूलों की इमारतों और फंक्शन हॉल्स को आर्जी तौर पर मुंतकिल किया गया। इसी तरह इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि गांव के तालाबों में पानी हद से ज़्यादा ना बढ़े। महकमे आपाशी के अफसरान, अवामी नुमाइंदे और कायदीन तालाबों का दौरा करें और इलाकों में मौजूद कूड़ा व दीगर रुकावटों को फौरी तौर पर हटाए ताकि तालाब का पानी बगैर किसी रुकावट के बाहर निकल सके। अवाम सफ़र से गुरेज करे क्योंकि बारिश मज़ीद चंद रोज़ जारी रहने का इम्कान है। बच्चे, बूढ़े और औरतें इस वक्त तक बाहर ना निकले जब तक कि इमरजेंसी ना हो। किसानों को भी खुद को हादसात का शिकार होने से बचाना है। बहती हुई नदियों को उबूर करने की कोशिश ना करें। खंभों, तारों और मोटरों को मत छूना क्योंकि नीचे की जमीन गीली है। बिजली के झटकों से बचने के लिए घर में भी बरक़ी आलात से मोहतात रहे। बरक़ी हादसात को रोकने के लिए महकमे बिजली के अफसरान मुनासिब एहतियात बरते। कोई भी खंभे या तारे जो खतरनाक है, फौरी तौर पर दुरुस्त करें। बांसवाड़ा पुलिस ने बैन जिले खवातीन चोरों के गिरोह को किया गिरफ्तार। बांसवाड़ा पुलिस ने 24 तारीख को कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में चोरी करने वाली बैन जिले खवातीन चोरों की एक टोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि इन्होंने 5 अजला में चोरी की वारदातें की है। DSP जयपाल रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस ने इन्हें शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया। सब स्टेशन के करीब घूमते हुए 5 खवातीन डाकुओं में से एक फरार हो गई, जबकि 4 खवातीन डाकुओं के साथ ताउन करने वाली टाटा एस गाड़ी के ड्राइवर और इसे खरीदने वाले शख्स को गिरफ्तार करके रिमांड पर लिया गया है। DSP जयपाल रेड्डी ने बताया कि इन्होंने कहा कि ये केस CC फुटेज के जरिए बनाया गया है। DSP जयपाल रेड्डी ने कहा कि SP ने इनाम का ऐलान किया है और CI राजशेखर रेड्डी की टीम को मुबारकबाद दी जिन्होंने केस को जल्द बाजियाब कराया। 70 కిలోల కాపర్ కాయలు తీసుకొని పోవడం జరిగింది। మళ్ళీ ఇదే సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో మహాదేవ్పూర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో కూడా సేమ్ ఇలాగే BSNL గోడౌన్లో కాపర్ కాయలు దొంగతనం చేశారు। వీళ్ళ నేరస్థ వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేసుకొని మొత్తం ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ జయశంకర్ భూపాలపల్లి ములుగు జిల్లాకు వెళ్ళి అక్కడ జంగాలపల్లిలో ఎవరైతే ఆటో ఓనర్ ఉన్నాడో ఈ సొత్తు దొంగ సొత్తు కొనే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో దేవేందర్ని కూడా అరెస్ట్ చేసి भैंसा मजलिस कायद मोहम्मद जाबिर अहमद की जानिब से बारिश से मुतासरा इलाकों में ग़िज़ाई पैकेट्स की तक़सीम।
भैंसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सदर मजलिस कुल हिंद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिये भैंसा व निर्मल जिले सदर की निगरानी में बारिश से मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर ग़िज़ाई पैकेट्स की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। इस राहतकारी मुहिम के कामों में मजलिस के अराकिन बल्दी जिसमें फैजुल्ला खान सदर मजलिस टाउन भैंसा, मोहम्मद आमिर इम्तियाजुल हक, एडवोकेट अब्दुल खादर उर्फ बाबा, मोहम्मद माजिद करावा, दीगर मजलिसी काउंसलर्स व कारकुनान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर मजलिस की जानिब से बारिश से मुतासरा इलाकों में मुस्तैक़ अफ़वाम की मकानों तक मजलिसी कारकुनान पहुँचकर ग़िज़ाई इमदाद पहुँचा रहे हैं ताकि मुस्तहिक़ीन को मदद व राहत हासिल हो सके। इस मौके पर इस्तिफ़ादा कुननगार ने मजलिस की राहतकारी मुहिम पर मोहम्मद जाबिर अहमद और सदर मजलिस भैंसा फैजुल्ला खान का शुक्रिया अदा किया। कल से 5वें दिन ये बारिश बहुत ज़ोरों शोर से जारी है और हमारे काउंसलर्स के वार्डों वगैरह में सब पूरे दौरे हो रहे हैं। हमारे काउंसलर्स जो है ना रिपोर्ट दिए कि साथ जो गरीब लोग हैं जैसे टी शर्ट में रहने वाले हैं, कच्चे मकानात है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी जो उनकी है लेबरी करके खाना पीना जीना है उनका, इस लिहाज से हम लोग को तय करके असद साहब की हिदायत पर हम लोग पूरे भैंसा शहर में चाहे वो कोई भी रहने दो, हम बराबर उनको हमारे यहाँ से मस्जिद की तरफ से फुट तकसीम कर रहे। तमाम काउंसलर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं हमारे वर्करों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो कम वक्त में सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरे लोग जमा होकर ये हमारे पास आने का इंतज़ाम में हाथ बटा रहे हैं और वैसे ही यार घर घर जाकर हम उसके पाकिट से हम लोग तकसीम कर रहे हैं। ये काम जो है ना हमारा काम जो भैंसे शहर के वास्ते जो हम लोग कर रहे हैं ये हमारा हक है कि हम बराबर हमारे भैंसे शहर के शहरियों को बुरे वक्त में हम लोग साथ देना बोल के हमारी जमात और हमारे काउंसलर्स हमारे वर्कर तो मिलकर हमारे ये काम में हम लोग आगे आ रहे हैं और आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात है कि गैर तौर पर किसी से डबल ट्रिपल मत लीजिए क्योंकि पूरे भैंसे शहर में बांटना है हमको। ये जिसको भी नहीं मिला बराबर आके यहाँ पे शादी खाना ग्रेट फंक्शन हॉल में हमारा इंतज़ाम है, वहाँ पे आके पाकिट ले सकते हैं। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। सदर जमीयतुल उलमा आरमूर हाफिज शेख इब्राहिम की निगरानी में एक वफद ने आरमूर में बारिश से मुतासरा मकानात का किया दौरा, हुकूमत से माली इमदाद का किया मुतालबा। सदर जमीयतुल उलमा आरमूर हाफिज शेख इब्राहिम की निगरानी में एक वफद ने आरमूर में बारिश से मुतासरा मकानात का दौरा किया और यहाँ के हालात का जायजा लिया गया। इस वफद में नायब सदर जमीयतुल उलमा आरमूर मौलाना अकरमुद्दीन मुफ्ताही ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम अफराद के मकानात का जायजा लिया गया जो शदीद बारिश के पेश नज़र मुनहदिम हो गए। इन अफराद से बात की गई और हुकूमत रियासत तेलंगाना से हाफिज मोहम्मद इब्राहिम सदर जमीयतुल उलमा ने मुतालबा किया कि जिन अफराद के मकानात मुनहदिम हुए हैं इन्हें माली इमदाद फराहम की जाए और फौरन बाजियाबी के इक़दाम किए जाए ताकि इन गरीब कच्चे मकानात में रहने वालों के साथ इंसाफ हो। तेलंगाना पॉलीसेट के नतायज जारी, 75% उम्मीदवार क्वालिफाई। तेलंगाना स्टेट पॉलिटेक्निक कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट TS पॉलीसेट 2022 नतायज आज जारी कर दिए गए जिसमें 75% से ज़्यादा उम्मीदवार क्वालिफाई हुए हैं। कमिश्नर टेक्निकल व कॉलेजिस्ट एजुकेशन नवीन मित्तल और सेक्रेटरी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग C श्रीनाथ ने नतायज जारी किए। इंट्रेंस इम्तिहान में जुमला 1,43,062 उम्मीदवारों ने शिरकत की और MPC में 79,038 उम्मीदवार 75.73% और MPC स्ट्रीम 79,117 उम्मीदवार 75.8% क्वालिफाई करार दिए गए हैं। MPC स्ट्रीम में करीमनगर की जी वरिष्ठता ने 120 निशानात हासिल करते हुए पहला रैंक हासिल किया जबकि मेरचल मलकाजगिरी जिले के उम्मीदवार के चंद्रशेखर ने 119 निशानात के साथ MPC में पहला रैंक हासिल किया है। रैंक कार्ड और OMR शीट की स्कैन कॉपी वेबसाइट पर दस्तियाब है। पॉलीसेट के जरिए स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग की जानिब से डिप्लोमा कोर्सेज इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कोर्सेज एग्रीकल्चर, वेटनरी एंड हार्टिकल्चर में दाखिले हासिल किए जा सकते हैं। पॉलीसेट इम्तिहान का 30 जून को इनेकात अमल में आया था जिसके लिए 365 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे। पॉलीसेट MPC स्ट्रीम में 10वीं रैंक तक मुकाम हासिल करने वाले तलबा में जी वरिष्ठता फर्स्ट S भानु प्रसाद सूर्यापेट, सेकेंड रैंक CH साई रोहित कोदाल, थर्ड रैंक के चंद्रशेखर, फोर्थ रैंक
बी वसंत लक्ष्मी और एम वेंकट साई। 5th रैंक जी नागराजू, 6वां रैंक के वेंकटेश, 8वां रैंक CH अनुहा, 9वां रैंक जी महेश्वर जी समेत के वेंकट कृष्णा, एम श्रीजा और टी श्री राम तेजा को 10वां रैंक हासिल हुआ। MPC स्ट्रीम में के चंद्रशेखर को पहला रैंक हासिल हुआ, जबकि के विनय को दूसरा और एम मनीष रेड्डी को दूसरा रैंक हासिल हुआ। तेलंगाना में एमसेट एग्रीकल्चर इम्तहानात मुलतवी। रियासत में मुसलसल बारिश के पेश नज़र तेलंगाना एमसेट 2022 को मुलतवी कर दिया गया, जो 14 और 15 जुलाई को मुकर्रर था। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने आइंदा 3 दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशकशी को देखते हुए ये फैसला किया है। एमसेट एग्रीकल्चर स्ट्रीम के इम्तहानात की मुताबिक तारीखों का बाद में ऐलान किया जाएगा। काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के मुताबिक तेलंगाना स्टेट एमसेट 2022 बराए इंजीनियरिंग स्ट्रीम शेड्यूल के मुताबिक 18 ता 20 जुलाई मुनाक़िद होंगे। सदर नशीन काउंसिल प्रोफेसर आर लिम्बादरी ने ओहदेदारों के साथ बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासत भर में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के सबब पेश आने वाले हालात से निपटने के लिए हुकूमत तैयार। तमाम ओहदेदारों से मैं मुसलसल राब्ते में हूँ। मेरा अमेरिका दौरा सिर्फ निज़ामाबाद में IT हब के आगाज़ व बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए है। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता का इजहार। నిజామాబాద్ నగర ప్రజలకు నమస్కారం. కొద్ది రోజులుగా కురుస్తున్నటువంటి అకాల వర్షాల కారణంగా కొన్ని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమైనటువంటి సంగతి మనమందరం మీడియాలో కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. నేను IT హబ్లో ఉద్యోగుల కోసం, యువకుల కోసం కొన్ని కంపెనీలు తేవాలనే ఉద్దేశంతో అమెరికా పర్యటనకు రావడం జరిగింది. మరి ఇంకా కొన్ని రోజులు ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ కూడా వెంటనే నేను కుదించుకొని ఈరోజు నేను నిజామాబాద్ బయలుదేరి వస్తూ ఉన్నా. మరి కలెక్టర్ గారితో, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారితో, ఇతర అధికారులతో, మరి మా కార్పొరేటర్లు, మేయర్ గారు అందరితో నేను అనుక్షణం మాట్లాడుతూ ఉన్నా. అందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వాతావరణ శాఖ ప్రకారం ఇంకా ఒక 2-3 రోజులు వర్షాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి తెలుస్తూ ఉంది. దయచేసి ఎలాంటి ఆందోళనకు గురి కాకుండా ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు కూడా చేపడుతుంది కాబట్టి ఆందోళనకు గురి కాకుండా ఉండాలని నేను మనవి చేస్తూ జై హింద్, జై తెలంగాణ. तेलंगाना में कोरोना के 527 नए केसेस। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 527 केसेस मंजर-ए-आम पर आए, जबकि 557 अफराद सेहतियाब हुए। महकमे सेहत के मुताबिक 5082 अफराद आइसोलेशन के तहत ज़ेर इलाज है। गुज़िश्ता 2 दिनों में कोरोना के 25,262 टेस्ट किए गए, जिनमें से 583 का नतीजा आना बाकी है। हैदराबाद में 290 केसेस दर्ज किए गए, जबकि कोत्तागुड़म 11, जनगांव 9, करीमनगर 9, खम्मम 10, महबूबाबाद 9, मलकाजगिरी 43, नलगोंडा 9, पेदापल्ली 9, रंगारेड्डी 55, संगारेड्डी 9 और हनुमनकुंडे में 10 केसेस दर्ज किए गए। महकमे सेहत की जानिब से अवाम से गुजारिश की गई है कि वो मास्क का इस्तेमाल करने के अलावा तमाम एहतियाती इक़दामात पर तवज्जो दे। कौमी और रियासती सतह पर कोरोना के केसेस में मामूली इजाफे के बाद हुकूमतें इस पर कंट्रोल के लिए तवज्जो दे रही हैं। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी कायदीन अवाम के दरमियान मगरमच्छ के आंसू बहाना छोड़कर अगर दम है तो तेलंगाना में हो रही तबाही जो एक नेशनल डिजास्टर है, इसके लिए मरकज की जानिब से 25,000 करोड़ का फंड लाए। बोधर रुकन असम्बली शकील आमिर, इन्होंने बारिश मुतासर इलाकों का किया दौरा। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने शहर निजामाबाद के बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा करते हुए हालात का लिया जायजा। वो बाबन साहब पहाड़ी इलाके में दरपेश मसाइल से अवाम के जरिए हासिल की वाक़ियत। वो ओहदेदारों को अवाम की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम लेने की दी हिदायत। निजामाबाद रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से 2000 बारिश मुतासरीन में खाने की तकसीम का आगाज। वो बारिश के मौजूदा हालात का वक्त ब वक्त ओहदेदारों से हालात का लिया जायजा। कायदीन व ओहदेदारों को अवाम की मदद करने का दिया मशवरा। अमरीका दौरा सिर्फ जिले के नौजवानों को रोजगार फराहम करना है। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता।
बांसवाड़ा में महकमे पुलिस ने बैन जिले खवातीन चोरों के ग्रुप को किया गिरफ्तार, वो कई अशिया की जब्त। जगतियाल में टीवी रिपोर्टर कार समेत बह जाने के वाक़े पर अभी तक भी हुकूमत की जानिब से कोई ठोस इक़दाम न लेने पर शाह निज़ामाबाद के सहाफ़ियों ने किया अफसोस का इजहार, वो प्रेस एकेडमी में हुकूमत से कार्रवाई करने का किया मुतालबा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।